isn't just something we change externally, it's an internal state connected to our thoughts, emotions, and our outlook on life. Throughout the conference, we will be delving into how happiness can be achieved at personal, societal, national, and global level through coexistence and just relationships. We will also be looking at how this coexistence promotes overall well-being and ecological equilibrium. We will be exploring the harmony between human aspirations and universal objectives and how to lead a life filled with happiness, contentment, prosperity, fearlessness, and jubilation, contributing to individual, collective, and universal happiness. We will also be unraveling the essence of human relationships and the path to finding fulfillment in them, as well as the purpose of human life and the methods to achieve it. The conference will also shine a light on how human culture, civilization, constitution, and order play a role in promoting harmonious living and their interconnectedness with the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. We aim to identify the primary challenges and present feasible solutions for leading a simple and harmonious life, contributing to a balanced world. This conference will help us all in finding answers to what is right, what is simple, and how a human should live and who should participate in it. In conclusion, I would like to emphasize that happiness is not a destination but a journey. As Vivekananda rightly said, happiness is a quality of the mind, not of circumstances. Let's dive into the journey of searching ourselves. Thank you everyone for patiently listening. Thank you. जब आपको देखना है तब आप उसको पढ़ो। Thank you so much. Now, I would like to draw the attention towards all of you to our special guest and keynote speaker, Shri Surendra Pathak sir, is an advisor to GPF India Global Peace Foundation, New Delhi, and principal investigator of Vasudhaiva Kutumbakam project. Sir is currently professor at School of Philosophy and Technological Studies, LJ University, Ahmedabad, Gujarat, and assistant professor, Department of Gandhiwadi Peace Research Center, Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad, professor and head, Department of Value Education. Formerly, Sir directed Extensionally Harmony Project, IASE, Deemed University, former director, Research, former dean, Social Sciences, IASE University, Gandhi Vidya Mandir, former trustee, Global Peace Foundation, India, New Delhi, President, Global Harmony Association, India, and Vice President, Interfaith Foundation, India. Sir is working on peace at international level. Till now, he has taken more than 100 sessions and has published more than 50 research papers and books. I invite Sir for his inspirational thoughts and blessing. Please welcome Sir with applause. आदरणीय वाइस चांसलर साहब डॉक्टर अंकुर अरुण कुलकर्णी सर, प्रोफेसर पीएन मिश्रा सर, फॉर्मर डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और इस देश के जाने माने प्रबंधन विशेषज्ञ, पूरे हिंदुस्तान में ढेर सारे इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करने वाले प्रोफेसर पीएन मिश्रा सर, रजिस्ट्रार डॉक्टर मनीष चौधरी जी, मेरे मित्र राघवेंद्र दुबे जी, रमेश चौधरी जी, सुनील छांगवाल जी, और आज के हमारे जो प्रबोधक हैं जनक भाई पटेल गुजरात से आए हैं, श्रीमती शालिनी गुप्ता जी जो भुज में रहती हैं और कानपुर की हैं, और बहुत सारा इनका मध्यस्थ दर्शन के ऊपर YouTube में जो है 1000 घंटे से ज़्यादा का रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है आप लोग इसको देख सकते हैं कभी कभी। तो मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे युवाओं के बीच में आके खड़े होके बोलने का अवसर मिला है। मैं भी एक समय आपके जैसा स्टूडेंट था, सागर यूनिवर्सिटी से मैंने एमटेक किया जियोलॉजी में,
और फिर सागर यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई होती रही, वहीं से पीएचडी भी किया। तो उस समय आपकी जब उम्र में था तो हम लोग शायद पीस, हारमोनी, ह्यूमन वैल्यूज़ इस सब पे बात करना पसंद नहीं करते थे लेकिन ये बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ के बच्चों ने, खासकर सेज यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, उन्होंने एक ऐसा आयोजन किया और जिस पे बड़े बड़े मुद्दे, वसुधैव कुटुंबकम जैसा मुद्दा, हमारे देश के जितने महापुरुष हुए हैं सभी वासुदेव कुटुंबकम की बात करते आ रहे हैं। वैदिक काल से चला आ रहा है ना। महाउपनिषद में एक सूत्र भी है ना, उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। यानी उस समय भी ये पहचाना गया था कि जो उदार चरित्र के लोग हैं वही वसुदेव कुटुंबकम की बात कर सकते हैं ना। जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं वो वसुदेव कुटुंबकम की बात करने के अधिकारी नहीं हैं। जो लोग समुदाय चेतना में हैं, जो संकीर्णताओं में जीते हैं, वो वसुदेव कुटुंबकम जैसी बात को करने के अधिकारी नहीं हैं। लेकिन हमारे वैदिक काल का जो ऋषि है इस बात को पहचानते थे और उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम की बात की। मैं बहुत थोड़ी सी बात यहाँ करेंगे क्योंकि ये उद्घाटन सत्र है, बाकी तो आपके साथ लंबा संवाद करना है ना, बहुत सारा बच्चों के साथ, और मुझे आपसे कुछ सीखना भी है और कुछ बताना भी है, दोनों बातें। तो हम लोग सीखेंगे और एक दूसरे के साथ जो है सीखना, सिखाना, समझना, समझाना करेंगे, है ना। आप ऐसा मत मानिए कि मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ, लेक्चर देने के लिए आया हूँ। ज़्यादा मैं सीखने के लिए आया हूँ। मुझे पता लगे कि नई जनरेशन कैसा सोच रही है, उसके अंदर क्या, क्योंकि जो पुरानी जनरेशन है उसने जो संसार आपको दिया है वो बहुत अच्छा नहीं दिया है ना। और उसके लिए कहीं ना कहीं हम सब लोग भी उत्तरदायी हैं, जो यहाँ मंच पे बैठे हैं वो भी, और जो आपके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, इनका भी कुछ उत्तरदायित्व है कि हम लोग उतनी ईमानदारी के साथ संगठित होकर एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पाए और धरती बीमार हो गई, है ना। पर्यावरण प्रदूषित हो गया। मैं दिल्ली में रहता हूँ, सांस लेना भी मुश्किल है ना। दिल्ली में 70% लोग जो हैं वो अस्थमा के बीमार हैं, क्योंकि हवा ख़राब हो गई, वातावरण भी ख़राब हो गया। अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली में एक जो है ड्रग का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है ना, कोई 5000 करोड़ का ड्रग पकड़ी गई। पूरा पंजाब का उड़ता पंजाब, आपने वो फिल्म देखी होगी, तो नशे में डूब गई। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग, और ये नशा बढ़ता जा रहा है, तनाव भी बढ़ता जा रहा है, और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक जो प्रवृत्ति बन के आ रही है वो है व्यक्तिवाद, जहाँ बच्चों को माता पिता से मतलब नहीं है, परिवार को समाज से कोई सरोकार नहीं है, समाज को राष्ट्र से नहीं है ना। समाज जो है समाज जो है अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं, और उसके कारण से समुदाय चेतना बढ़ गई। समुदाय चेतना के कारण से द्वेष बढ़ गया। कितना द्वेष हम लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे देखते हैं, कितना लोग एक दूसरे को गाली बकते हैं, जहर उगलते हैं एक दूसरे के खिलाफ में। घृणा जो है वो पराकाष्ठा में है। अभी हम लोग इजराइल और हमास और लेबनान में जो युद्ध हो रहा है, ईरान भी उसमें परोक्ष रूप से शामिल है। इसको जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि घृणा किस पराकाष्ठा पे है। जो इस्लामिक आतंकवादी हैं वो कहते हैं कि यहूदियों को समूल नष्ट कर देना है, उनकी कोई भी एक भी यहूदी इस धरती पे जिंदा ना बचे। इससे ज़्यादा घृणा की पराकाष्ठा और क्या हो सकती है। और इसके कारण से युद्ध होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, आप लोगों को पता ही होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार नस्ल के कारण से हुआ और करोड़ों लोग मारे गए। तो लोगों का मारा जाना जो है एक घटना के रूप में है,
लेकिन उसके कारण से जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विधिक, शैक्षिक व्यवस्थाओं में जो समस्याएं पैदा होती हैं, है ना, वो युद्ध के बाद की विभीषिका होती है ना। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, हमारा पड़ोसी अफ़गानिस्तान जो है, वहाँ भुखमरी की स्थिति है। आतंकवादी ऐसा सोचते थे कि वो किसी देश पे कब्जा कर लेंगे, वो कर भी लिया, लेकिन उत्पादन व्यवस्था चौपट हो गई। भीख मांग के, लगभग भीख मांग के अपना पेट भरना पड़ रहा है। जिनके विरोध में थे उनसे भी भीख मांगना पड़ रही। ये स्थितियों में आ जाते हैं। इस सब का जो समाधान है वो वसुधैव कुटुंबकम है, अखंड समाज है, सार्वभौम व्यवस्था है। तो समाज, अखंड समाज कैसे बने? व्यक्ति परिवार के साथ, परिवार समाज के साथ, समाज राष्ट्र के साथ, राष्ट्र अंतर्राष्ट्र के साथ संबंध को कैसे पहचाने, टुगेदरनेस कैसे आए, इंटरकनेक्टिविटी को हम कैसे पहचाने। एक व्यक्ति का, जैसे आप सब विद्यार्थी हैं, माता पिता के कारण से आप शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपका भोजन, आपकी स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, सबकी जवाबदारी जो है वो माता पिता वहन करते हैं। एक आयु तक सबके माता पिता करते हैं ना। तो आपका अपना होना परिवार के सहअस्तित्व में है, इस बात को हमको पहचानना चाहिए और इस बात के लिए हमको कृतज्ञ होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम एक परिवार को समझने जाते हैं तो हमको ये पता लगता है परिवार की 90% से ज़्यादा आवश्यकताएं समाज पूरा करता है। खाद्यान्न की, फल की, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, समाज से पूरा होती है। ये बात अलग हो सकती है कि हमको उसका कुछ कीमत भी देना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यदि समाज उत्पादन ना करे, जैसे अगर बिजली आपके इंस्टीट्यूशन में ही 3 दिन बिजली नहीं आए तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो हम ये सोचते हैं कि पैसा देने से समस्या सॉल्व होती है, ऐसा नहीं। यदि प्रोडक्शन बना रहता है, उसकी सप्लाई बनी रहती है, उसकी सुलभता बनी रहती है ना, तभी पैसे दे के भी हम जो है कुछ चीज़ों को अर्जित करते हैं जो हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं। जैसे यदि दूध ना आए तो अखबारों में बड़ी हेडिंग हो जाती है ना। एक समय दिल्ली में 1 रुपये कीमत दूध की बढ़ती थी और टाइम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट पेज का हेडिंग होता कि दूध का कीमत बढ़ गया। और हर परिवार को दूध कहाँ से आ रहा है? कोई उसका उत्पादन करता है, कोई विनिमय करता है, तब परिवार में सुलभ होता है। हम लोग जब तक इस बात को पहचानेंगे नहीं, हम अपना सुखी नहीं हो सकते, हम उत्सवपूर्वक जी नहीं सकते। जो हमने कल्पना की है कि हैप्पीनेस जो है वो आ नहीं सकती है ना। तो हमको ये बात समझना चाहिए कि परिवारों की आवश्यकता जो है वो समाज पूरी करता है, और समाज जो पूरी करता है उसमें कुछ दोष हो सकते हैं, जैसे लाभ हानि हो गया, मिलावट हो गई है, करप्शन हो गया, ये सब हो सकता है। और इस दोष को ठीक करना भी हमारी ज़वाबदारी है, खासकर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की है कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करें कि ये व्यवस्थाएं ठीक हो सकें, है ना। अब यदि हम समाज को समझने जाते हैं तो समाज से बहुत सारा और भी क्रियाकलाप चलता है, जैसे जिसको हम लोग सामाजिक संबंध कहते हैं ना। जैसे हर समाज, हिंदू समाज, अभी मैं समुदाय के अर्थ में समाज की बात कर रहा हूँ, तो हिंदू समाज जो है वो किसी एक आचार संहिता से चलता है, मुस्लिम समाज एक आचार संहिता से चलता है। उस आचार संहिता को के आधार पे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैरिज वगैरह होती हैं, शादी विवाह होते हैं, बहुत सारे उत्सव होते हैं। और इन सबको उस समाज के जो मनीषी लोग होते हैं उन्होंने इसको बनाया होता है और समाज इसको आत्मसात करता है। तो जो एक सोशल लाइफ है वो भी सहअस्तित्व में चलती है, कोएग्जिस्टेंस में चलती है। धीरे धीरे क्या हुआ, शिक्षा का विकास हो गया, आईटी आ गई, आईटी के कारण से कनेक्टिविटी बढ़ गई, ग्लोबल लेवल पे कनेक्टिविटी बढ़ गई। तो जो कल्चरल डिस्टेंस थी वो कम हो गई, है ना। अभी हिंदुस्तान का आदमी पूरी दुनिया में है,
फिर इसके बाद विकिपीडिया आ गया और अब एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, चैट जीपीटी आ गया और AGI आ गया, है ना, जनरल इंटेलिजेंस आ गया, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ गया। कल्चरल डिस्टेंस कम होने लगी पूरी दुनिया में। और पहले किसी आदमी को इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, अब्राहमिक फिलॉसफीज़ को या वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ना है तो थोड़े से लोग पढ़ पाते थे, कुछ बड़े प्रकांड प्रोफेसर लोग होते थे वो पढ़ाते थे। अभी आप अपने मोबाइल पे सब पढ़ सकते हैं और ना केवल आप अपने प्रोफेसर को सुन सकते हैं, दुनिया के जो टॉप के रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या उनका रिसर्च है। बहुत सारी रिसर्च की ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जैसे academia.org है, उसमें लाखों रिसर्च पड़ी हुई है। जितनी भी दुनिया भर की रिसर्च होती है वो एकेडमिया में पोस्ट हो जाती हैं। तो आप बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च के भी कांटेक्ट में आ गए। हम लोग जब रिसर्च करते थे तो लाइब्रेरी में जाके घंटों बैठ के रिसर्च वर्क करते थे। पहले एक कार्ड जैसी, एक पोस्ट कार्ड जैसे साइज़ का कागज़ लेके जाते थे, उस कागज़ में किताब में से रेफरेंस कोट करते थे, किताब का नाम, ईयर, पब्लिकेशन, ये सब नोट करते थे। अब वो आपके फिंगर टिप पे आप AI में डालिए कि हमको इसके रेफरेंस, इसका साइटेशन, इसके कोटेशन चाहिए, वो आपको इमीडिएटली दे देता है। थोड़ा सा क्रॉस चेक करना होता है। अभी AI और अपडेट हो जाएगा फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, लेकिन अब आप अप टू डेट हो गए, है ना, कल्चरली भी, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी। अब इकोनॉमिक्स वैसा नहीं बचा है, लोकल इकोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं, ग्लोबल हो गया है ना। अभी ईरान के यदि तेल के भंडार पे इजराइल हमला करके उसको नष्ट कर देता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे उसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। तेल के रेट, दाम बढ़ जाएंगे, आदि आदि बहुत सारा। सारे दुनिया के लोग इसी को बैठ के विचार करते रहते हैं और फिर युद्ध थोपते भी हैं। युद्ध इसलिए थोपते हैं क्योंकि वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं। यूक्रेन वार का मूल कारण इकोनॉमिक ही है, मूल कारण। पॉलिटिकल तो उसके बाद है, इकोनॉमिक है, क्योंकि उस पर कब्जा करने से रशिया का एंट्री जो है पूरा यूरोप के मार्केट पे हो जाएगा। अभी यूक्रेन जो है उसमें बाधा बनता है। तो हमको अब जो नए तरीके से सोचने का अभ्यास करना पड़ेगा, जिसको हम लोग कह रहे हैं वासुदेव कुटुंबकम, है ना, ग्लोबल वननेस, वन वर्ल्ड फैमिली, है ना, वन फैमिली, इस तरीके से सोचना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब हमने अभी G20 में नरेंद्र मोदी जी को सुना और G20 में जो दुनिया के लीडर आए, का एनवायरनमेंट जो है आइसोलेशन में नहीं है ना, वो पूरे देश के और देश का एनवायरनमेंट जो है वो दुनिया के एनवायरनमेंट से जुड़ा है। क्योंकि पर्यावरण का कोई विभाजन रेखा नहीं है, हम उसको बांट नहीं सकते हैं, है ना। वायुमंडल का भी नहीं है, पृथ्वी का भी नहीं, जिसको हम स्थल कह रहे हैं, स्थल भूमि, उसका भी कोई विभाजन नहीं है। पॉलिटिकल बाउंड्री है, हमने कहीं तार का फेंसिंग करके कह दिया है कि ये हमारा इंडिया का है और ये दूसरे कंट्री का है। कई जगह तो बाउंड्री भी नहीं है, जैसे नेपाल भूटान के साथ हमारी कोई बाउंड्री यानी फेंसिंग भी नहीं है। शायद कोई नदी है, नदी नहीं है तो कोई फॉरेस्ट बेल्ट है, जिस फॉरेस्ट बेल्ट में हम कहते हैं बस यहाँ से भूटान शुरू हो गया, यहाँ से। तो पूरी धरती जो है वो एक यूनिट है ना, जिसको हम कह रहे हैं वन अर्थ है। उसका एनवायरनमेंट जो है वो अखंड है, विभाजित नहीं है। तो इसीलिए जो इकोलॉजिकल स्टडीज़ हैं उसको, उस पे विचार करने का दृष्टिकोण पूरी दुनिया में बदल गया है। अब पूरी पृथ्वी को एक इकाई मान के शोध हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, और इसीलिए जो सलूशन है वो ग्लोबल लेवल पे आएंगे। स्थानीय स्तर पे सलूशन हम लोग तलाशने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंदौर को हम कहते हैं क्लीन सिटी है ना, ये पिछले कई सालों से इंदौर को अवार्ड भी मिल रहा है क्लीन सिटी का।
लेकिन फिर भी जो गंदगी होती है वो एक प्रकार की अभ्यास से होती है, एक प्रकार का अभ्यास है ना, उसके कारण से होता है। और ये अभ्यास शिक्षा से आता है। ये अभ्यास ग्लोबल लेवल पे जो मानसिकताएं होती हैं उससे बनता है। तो हमको वननेस को समझना पड़ेगा, इंटरकनेक्टेडनेस को समझना पड़ेगा, वासुदेव कुटुंबकम को समझना पड़ेगा, वन अर्थ के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, वन फैमिली को समझना पड़ेगा। तभी हम इस धरती को और खुशहाल धरती बना सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी सी बात करते हैं, यहीं पे रुकते हैं, फिर और बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, आपसे भी सुनेंगे। मुझे पाठक जी की बातें सुनते हुए एक जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, देखिए जब हम अतीत की बात करेंगे तो मलेशिया से लेके, बाली से लेके, अफ़गानिस्तान से लेके नेपाल, भूटान, ये सारा एक हिंदू राष्ट्र था। वसुधैव कुटुंबक के कारण आज धीरे धीरे सर ने जो कहा कि अफ़गानिस्तान में ऐसी नौबत आ गई कि जो कुछ सैकड़ों साल पहले हिंदू थे आज वो खाने के लिए रास्ते पे घूम रहे हैं, क्योंकि ये कहीं से नहीं आए। पाकिस्तान में, बांग्लादेश का तो हमने अभी देख ही रहे हैं। वसुधैव कुटुंबक के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, क्योंकि मैं कुछ ही समय पहले फ्रांस में था। फ्रांस की हालत दुर्गति इतनी हो गई है कि फ्रेंच लोगों को वहाँ घूमना फिरना मुश्किल हो गया है। जैसे हम वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं ना, और ऑन द कॉन्ट्ररी वसुधैव कुटुंब के 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, जिसका सर ने भी जिक्र किया। एक का इज़राइल जो कहता है कि ये वसुधा जो उनकी धरती है और वो धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे, उसके बैड साइड इफ़ेक्ट्स भी हम देख रहे हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल है जापान, जो बहुत स्ट्रिंजेंटली किसी को आने नहीं देता है। उन्होंने समय के साथ अपने आप को एक बना लिया है। वो कहते हैं कि ये वसुधा ही हमारा कुटुंब है और इसी को हम संभालेंगे। तो अलग अलग उसमें विचार है, मेरा कोई इसमें निजी विचार नहीं है, मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दे रहा हूँ। और बहुत ही अच्छी बात है कि हैप्पीनेस पे हम काम कर रहे हैं। आज तक पहले आप देखेंगे 20-30 साल पहले, 50 साल पहले हैप्पीनेस को ढूंढना भी नहीं पड़ता था। अब वो इतनी डिफ़िकल्ट कमोडिटी हो गई है कि हमें ढूंढना पड़ रहा है, उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप और सेमिनार करने पड़ रहे हैं। मैंने किसी ज्ञानी को पूछा था कि भाई ये हैप्पीनेस होता क्या है, तो बोले अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक फुलपाखरू जैसा, बटरफ्लाई जैसा होता है। आप शांत बैठो, वो घूमते फिरते आके आपके कंधे पे बैठ जाएगा, उसको खोजो मत, वो आपके अंदर ही है, वो आपके कंधे पे आके बैठ जाएगा। वो बटरफ्लाई होता है, आप उसके पीछे दौड़ोगे तो खुद गिर जाओगे, लेकिन वो हाथ में नहीं आएगा। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और राजेंद्र जी धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। मुझे थोड़ी समय के लिए तो मैं तो बहुत कुछ सुनना भी चाहता था, और स्पेशली मिश्रा जी को सुनना तो मेरा सौभाग्य था, लेकिन मुझे माफ़ कीजिए। धन्यवाद। Now, as per the thoughts of sir, youth has the power that can bring change. And now, I would like to introduce the guest of honor, Shri P.N. Mishra sir. Sir's multifaceted academic career includes a master's degree in management and mathematics, along with a doctorate in mathematics and an LLB. He has been a recipient of the United Nations Fellowship and Commonwealth Academic Staff Fellowship sponsored by International Trade Center, Geneva. In 1980, the India JCS found him one of the 10 most outstanding people in the country. He has also been conferred the title Yog Shiromani by the Vedanta Dhanvantri Ashram, Trivandrum. In 1997, the Indian Institute of Management, Calcutta, offered him the Sir Ratan Tata Visiting Fellowship. In 2017, Dr. Mishra was awarded the Mahamana Madan Mohan Malviya Hindi Seva Samman. Before joining academia, as a lecturer at Allahabad University, he worked as a deputy director, general manager, UP, State Handloom Corporation, Kanpur. He founded and headed the Institute of Business Management, PTJLN Vikram University, Ujjain, as professor director.
He was the founding dean faculty of management, Bikram University, Ujjain. He has also worked as a senior faculty member at Management Development Institute, Gurgaon, and served on the core team for National Management Program. He has served as a fellow in the Department of Economics and Accounting, University of Liverpool, UK, and is associated as a senior visiting faculty with the School of Health System Management, Tulane University, USA. He has visited many countries on academic assignments such as the USA, UK, Republic of Ireland, Switzerland, South Africa, Brazil, Jordan, Sri Lanka, Bangladesh, Kenya, and Nepal. He addressed the 55th United Nations Subcommission on Human Rights in Geneva in August 2003. Dr. Mishra has 6 books and a large number of research papers and popular articles to his credit. At present, Shri P.N. Mishra sir is the chairman of Yogeshwar Shri Krishna Foundation, a charitable company, and trustee of the Textile Association of India MP unit. So please welcome sir, Shri P.N. Mishra sir, with a round of applause. Honorable Professor Pathak ji, Dr. Raghvendra Dubey ji, distinguished personalities sitting on the dais, faculty members in this university, and my very dear students. Well, I am utterly confused in this seminar. The reasons are manifold. First, on Antarrashtriya Matribhasha Divas in 2017, I have taken a public pledge along with many doctors, engineers, advocates and other professionals that as far as possible I will use my mother tongue. And my mother tongue is not even Hindi. My mother tongue is Audhi, in which Tulsidas composed his Ramcharitmanas. But then since I keep on traveling to various places and lecturing here and there, so I have developed a protocol for myself. If I am introduced in Hindi language, it means it is a hint for me to address the house in Hindi language. And if I am introduced in English language, I take that as a hint to talk in English language. So the conduction of this seminar is bilingual, and I have presented before you in English language. The earlier colleague of mine has addressed the house in Hindi language. Therefore, I am utterly confused which language should I choose for myself. I am equally poor in both the languages, so choice is yours, Hindi or English. Decide it right now. Okay, thank you very much. I am happy on this choice that you have not selected my mother tongue, which is Audhi. A language very close to Hindi language. Audhi हिंदी से पुरानी भाषा है और हिंदी से ये कम समृद्ध भाषा नहीं है. अकेले तुलसीदास जी को निकाल दें जो अवधि के कवि हैं, तो हिंदी में एक बड़ा विशाल शून्य अपने आप पैदा हो जाता है. जहाँ तक इस विषय की बात है की ऑफ हैप्पीनेस फॉर ऑल, मैं आत्मविकास के सारी पुस्तकों में भगवत गीता को श्रेष्ठ मानता हूँ. और जब कभी भी इस प्रकार के किसी विषय पर मुझे संवाद करने का मौका मिलता है, एक बार मैं पुनः भगवत गीता को उलटता पलटता हूँ. भगवत गीता में शांति शब्द तो है, हर्ष शब्द भी है, पर आनंद शब्द का भगवत गीता से सर्वथा लोप है ही नहीं. यानी यह श्री कृष्ण के चिंता और विचार का विषय नहीं है. हर्ष उनकी चिंता और विचार का विषय है, शांति भी उनकी चिंता और विचार का विषय है. अब यहाँ पे सवाल ये इस बात का पैदा होता है कि क्या सचमुच कोई चाबी ऐसी हो सकती है जो सबको आनंद देने वाली है? इस प्रश्न पर आने के पहले मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ और पतंजलि के सूत्रों में से एक सूत्र का मैं प्रयोग करता हूँ. कहानी बहुत लंबी है, उसका छोटा अंश मैं सुना देता हूँ आपको. विश्वामित्र एक राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे और वशिष्ठ फिलोसोफर थे, ज्ञानी थे, उपदेशक थे. वशिष्ठ जी के यहाँ विश्वामित्र जी राजा के रूप में मेहमान हुए.
अब इसके बाद उनके यहाँ एक गाय थी वशिष्ठ जी के आश्रम में, नंदनी नाम था उसका। और जब उनके विदाई का समय हुआ तो वशिष्ठ जी ने, चूंकि विश्वामित्र राजा हैं, तो उनको ढेर सारा उपहार दिया। विश्वामित्र कहते हैं कि मैं ये गाय लूंगा। अब अतिथि का धर्म नहीं है कि वो जबरियां उपहार मांगे, जो हमारे पास है वो मैं दे दूंगा उसको, और उसे उसको लेके जाना चाहिए। क्योंकि वशिष्ठ तो दार्शनिक और शिक्षक हैं, विश्वामित्र तो वशिष्ठ तो दार्शनिक और शिक्षक हैं। वो कहते हैं ये गाय मैं आपको न दूंगा, क्योंकि मेरे 10,000 विद्यार्थी हैं और उनका पालन पोषण, इस पूरे गुरुकुल का कार्य इसी गाय से होता है, गाय नहीं मिलेगी आपको। विश्वामित्र अपने राजमद में आके कहते हैं कि नहीं दोगे तो मैं छीन के ले जाऊंगा। वशिष्ठ कहते हैं कि कोशिश करके देख लीजिए। बड़ा लंबा युद्ध चलता है, बारंबार विश्वामित्र उस लड़ाई में हारते हैं और अपना ये योग दंड गाड़े हुए वशिष्ठ महामुनि बैठे हैं। फिर विश्वामित्र को ये लगा कि हमारे अस्त्र शस्त्रों की ताकत, इनकी ज्ञान की ताकत, इनके ब्रह्म ज्ञान की ताकत के सामने तो कुछ भी नहीं है। ये भी कोशिश करते हैं कि अब मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा। कैसा ब्रह्मर्षि? जैसे ये हैं, और बड़ी तपस्या करते हैं, चंद्रमा बना दिया, लोग कहते हैं ऊंट बना दिया, कैंते का फल बना दिया, और बारंबार अपना बायोडेटा इंप्रूव करके ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं और कहते हैं कि बस अब वो ब्रह्मर्षि वाली उपाधि दे ही दो। तो सब जगह से उनको जवाब मिलता है कि इस ब्रह्मर्षि की उपाधि पर दस्तखत सिर्फ वशिष्ठ के होते हैं, कोई दूसरा इंटाइटल नहीं है इस डिग्री को साइन करने के लिए। और बारंबार वहीं वो वापस आते हैं। वशिष्ठ बारंबार उनको राजर्षि कह के संबोधित करते हैं। फिर और वो तपस्या करते हैं और योग्यताएं प्राप्त करते हैं। इस बार इस तरह से 99 प्रयत्नों में वो असफल हुए हैं, 99 टाइम्स। और हर बार जब वो आते थे, असफल होने के बाद वशिष्ठ जी के आश्रम में कुछ तोड़फोड़ करते थे, कभी आग लगा देते थे, कभी शिष्यों को मार देते थे, ये सब करते रहते थे। लंबी कहानी है। अब 100वीं बार जब ये पहुंचते हैं तो इनके मन में, विश्वामित्र के मन में ये बात आती है कि ये भाड़ में जाए ब्रह्मर्षि का पद, ये कुछ भी मुझे कहें, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मुझे राजर्षि बोलें या मुझे ये ब्रह्मर्षि बोलें, मैं इन सब से दूर हूँ। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, ब्रह्मर्षि बैठिए, मेरे साथ यज्ञ करिए। विश्वामित्र उनसे पूछते हैं कि ऐसा 1 मिनट के भीतर क्या हो गया, एक क्षण में क्या हो गया कि आपने मुझे राजर्षि ब्रह्मर्षि कहना शुरू कर दिया। तो वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं कि एक ब्रह्मर्षि की सारी योग्यताएं आप में थी, लेकिन जो आपकी प्यास थी, उतावलापन था ब्रह्मर्षि बनने के लिए, वह इस मार्ग में बाधक बनता था। इस नाते जब आपने वो लालसा त्याग दी है कि ब्रह्मर्षि बनूं या न बनूं, कोई फर्क नहीं है मेरे ऊपर, तो आप ब्रह्मर्षि हैं। यही बात इस आनंद की है। अब पतंजलि पर मैं आता हूं, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही आनंद का अधिकारी है, और ये सामुदायिक नहीं हो सकता, ये नितांत व्यक्तिगत होगा। जो सांख्य सूत्र में कहा गया है कि जिसको इस पुरुष के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वो दुनिया से पृथक हो जाता है और प्रकृति उसके लिए फिर उत्पादन करना बंद कर देती है। ये सांख्य का वाक्य है, जो ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में इसका उल्लेख भी किया हुआ है। 2 प्रकार के लोग हैं, एक जिनको आनंद के दर्शन हुए और फिर वो उसी में लीन हो गए, फिर लौट के आए भी नहीं कि किसी को समझाना है, किसी को और आनंद देना है, किसी और को चाबी सौंपनी है। उससे द्वयम दर्जे के जो लोग थे, जैसे स्वामी विवेकानंद इत्यादि, इस स्थिति का उन्होंने अनुभव किया। थोड़ी करुणा इन लोगों में बाकी रह गई थी, तो बोले और लोगों के चल के हम बताते हैं, दीवार से देखा आनंद की स्थिति को और लोगों को चल के बताते हैं कि भाई एक ऐसी स्थिति होती है आनंद की, जिसको प्राप्त करने की कोशिश करो। तो ये नितांत व्यक्तिगत है। आनंद का अधिकारी वही है जिसने हर अभिलाषा का परित्याग कर दिया है,
यहाँ तक कि आनंद पाने की भी अभिलाषा का परित्याग कर दिया है। उसको आनंद भी नहीं चाहिए। योग सूत्र का मैं एक वाक्य उद्धृत करता हूँ जो समाधि के विषय में है। उसे आनंद का रिफ्लेक्शन मान सकते हैं। पतंजलि कहते हैं तीव्र संवेगानाम आसन्ना, तीव्र संवेगानाम आसन्ना। समाधि पाने का संवेग जिसमें जितना प्रबल है वह समाधि के उतने करीब है। ये नहीं कहते महामुनि पतंजलि कि उसने समाधि को प्राप्त कर लिया है। जिसका संवेग जितना प्रबल है वह समाधि के उतने करीब है। तो आपको आनंद पाने की जो आपकी जिजीविषा है ये बड़ी तीव्र वेग से आपको उस तरफ ले जाएगी, लेकिन वस्तुतः आनंद के लिए क्वालिफाई करने के पहले आपको उस अभिलाषा का भी परित्याग करना पड़ेगा। जो कबीर कहता है, चाह गई चिंता मिटी, हर प्रकार की चाहत खत्म हो गई, आनंद हो या परमानंद हो या निरानंद हो या विषाद हो, हर चीज स्वीकार है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए, कछु में ये आनंद भी शामिल है, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साथ, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो बादशाहों के बादशाह हैं। तो पतंजलि कहते हैं कि आपकी जो अभिलाषा है, जो तीव्र संवेग है समाधि को पाने का, पहले ये आपकी गाड़ी को बड़ी तेजी से खींचेगा और ये इंजन कहाँ आपका साथ छोड़ देगा, एकदम दहली पर पहुंच करके ये आपका साथ छोड़ देगा। और उस दहली को क्रॉस करने का सिर्फ एक उपाय है, मात्र एक उपाय है कि आप सारी अभिलाषाओं का परित्याग कर दें, आनंद पाने की अभिलाषा का भी परित्याग कर दें, समाधि पाने की अभिलाषा का परित्याग कर दें, तब आप समाधि या आनंद के असली हकदार बनते हैं कि कुछ नहीं चाहिए। तो ये सामुदायिक नहीं हो सकता, सारे लोगों के लिए आनंद की कोई चाबी नहीं हो सकती है, ये नितांत व्यक्तिगत है। हाँ, मौज मस्ती के विषय और उसकी चाबियां हो सकती हैं, या एक या अनेक हो सकती हैं कि आज आप कैबरे करेंगे, आज डांस करेंगे, आज शराब पिएंगे, तो उसमें आनंद नहीं आएगा आपको, उसमें थोड़ी मोड़ी क्षण भंगुर मस्ती आएगी जो सवेरा होते होते वो ख़त्म भी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई चाहत नहीं है तो कोई आपको डिस्टर्ब भी किसी भी प्रकार से कर नहीं सकता है। अब दो स्थितियां हैं, एक ने तो यात्रा शुरू ही नहीं की, उसे भी कुछ नहीं चाहिए, मूढ़वत बैठा हुआ है, कुछ नहीं चाहिए उसको भी, तो वो तो अपने यात्रा की शुरुआत ही नहीं करेगा। और दूसरा वो है जो बिल्कुल किनारे पहुंच गया है, अब बस उसको एक छलांग लगानी है अभिलाषाओं को त्याग करके आनंद में लीन होने की, उसे भी कुछ नहीं चाहिए। एक जो सबसे नीचे है उसे कुछ नहीं चाहिए और वो अपनी यात्रा कभी शुरू ही नहीं करेगा। दूसरा जो सबसे ऊपर है, असली चीज को, महत्वपूर्ण चीज को प्राप्त करने के लिए वो तब क्वालिफाई करेगा जब उसको भी कुछ नहीं चाहिए, तब वो आनंद का अधिकारी बनेगा। आनंद प्राप्त करने की जो प्री कंडीशन है वो यही है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे आनंद भी नहीं चाहिए, उसे समाधि भी नहीं चाहिए, मान सम्मान या छोटी दुकानदारियों की तो बात छोड़ दीजिए, उसे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तब जा कर के वो क्वालिफाई करता है आनंद प्राप्त करने के लिए। 3-3.5 वर्ष पहले जब मैं विश्वविद्यालयीन तंत्र में, सरकारी विश्वविद्यालयीन तंत्र में काम करता था, शासकीय आदेश से एक आनंद के विभाग की स्थापना की गई, जिसका काम था आनंद प्राप्त करने के तौर तरीके को बताना। उस समय उसके प्रभारी हमारे मित्र आनंदकर बनाए गए, डॉक्टर आनंदकर। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उनका नाम सुना हो या कुछ लोग हो सकता है परिचित भी हो। बायोलॉजिकल साइंस के थे तो आते जाते जब कभी मिल जाते थे
तो मैं उनसे कह देता था कि आपका नाम ही आपका काम है, आप तो चिल्लाते पूरे कैंपस में घुमा करिए, आनंद कर आदेश है, आनंद करो, आनंद कर, आनंद कर। अब आनंद कर विभाग के जो मंत्री महोदय हैं, उनकी स्थिति ये है कि वे अत्यंत दुखी हैं। ये सच है, उनको लगता है कि कोई मलाईदार विभाग तो मिला नहीं, ये आनंद का विभाग मिल गया। PWD नहीं मिला, हायर एजुकेशन नहीं मिली, इंडस्ट्री नहीं मिला, आनंद का विभाग मिल गया, जिसका न कोई भवन है, जिसका न कोई बड़ा बजट है और जिसमें न पर्याप्त स्टाफ है। तो जो शीर्ष पर बैठा है इस मुहिम का प्रमुख, वही अत्यंत विषाद में है। अब उसकी अध्यक्षता में अगर आनंद प्राप्त करने का कोई शासकीय अभियान चलता है तो कभी पूर्णता को तो प्राप्त नहीं होगा। यह इंस्टीट्यूशनल कतई नहीं हो सकता, ये ऑर्गेनाइज्ड भी कतई नहीं हो सकता। यह नितांत व्यक्तिगत यात्रा है और लोगों को व्यक्तिगत रूप से ही करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपसे निवेदन किया कि जिन लोगों ने इसके स्वरूप का दर्शन किया, कुछ ने तो आखिरी छलांग लगाई और उसी में लीन हो गए, पुनः वो किसी से न कोई चीज़ संपुष्ट करने आए और न किसी को बताने आए, क्योंकि अब उनको किसी चीज़ का कोई प्रयोजन नहीं समझ में आया। कुछ थोड़े संवेदनशील लोग थे, उनकी भावनाएं बिल्कुल पूरी तौर पे तिरोहित नहीं हुई थी, वे लौट करके संसार में आए और लोगों को बताया। रामकृष्ण देव, विवेकानंद, रमण महर्षि इत्यादि उसी कोटि के लोग थे जिन्होंने जो देखा उसको दूसरों को बताने का काम भी किया। उन्होंने कुछ सूत्र अवश्य दिए हैं और ये सूत्र आपको कहाँ तक ले जाएंगे? बस ये सूत्र स्टेशन के पहले वाला जो रेड सिग्नल है वहीं पे लाके छोड़ देंगे। उसके बाद आपको सारी चीज़ का परित्याग करके आनंद, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर चीज़ छोड़ करके प्लेटफॉर्म पे पहुँचना है। वहाँ आपकी कोई भी आकांक्षा नहीं है, कोई भी अभिलाषा नहीं है, कोई भी प्रतिज्ञाएं नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है और आनंद प्राप्त करने का तो सवाल ही नहीं है। आनंद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है, कोई कष्ट की बात नहीं है। आपने यहाँ मुझे बुलाया, कुछ कहने का मौका दिया। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो या उसमें कुछ आपको सूत्र मिले हो तो बहुत अच्छी बात है, ना अच्छी लगी हो तो उसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है। अंत में मैं प्रोफेसर दुबे जी को, राघवेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने मुझे यहाँ आके आने का मौका दिया और इस विषय के इन्वेस्टिगेशन पर मेरा जो दृष्टिकोण है वह आपके समक्ष रखने का मौका दिया। जय देश, जय भारत। Good morning, everyone. I am Mihir Jadhav. Feel honored to be a part of this youth conference on happiness, coexistence with Vasudev Kutumbakam, key of happiness for all. I would like to present my sincere gratitude to Honorable VC Sir, Dr. Ankur Arun Kulkarni Sir, Director General Dr. Sudhir Agrawal Sir, Registrar Sir Dr. Manish Chaudhary Sir, Head of the Institute Dr. Raghvendra Dubey Sir, and HOD Sir Dr. Nirmal Dongre Sir, who had brought intellectual guests who will present and discuss their thoughts on youth and their happiness. I would also extend my heartfelt gratitude to our guest of honor, Shri P.N. Mishra Sir, who spared his precious time for us youth today. I feel honored to thank our prestigious speakers, Mr. Surendra Pathak Sir, Mr. Sunil Chandwal Sir, Mr. Janak Patel Sir, Mrs. Shalini Gupta Ma'am, and Mr. Rajesh Chaudhary Sir. Who will give their valuable thoughts on youth happiness. Moreover, I am happy to see you beautiful audience who will be listening to our speakers and would find joy of happiness through the means of this conference. I will conclude my words with this quote which says, "Happiness is the song of life, shimmering
joy with every choke. Thank you.